بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیری ماؤنٹ نے 4 مسلح سراغ رسانوں سے کہا، اب تمہارے دونوں افسران میرے نشانے پر ہیں۔ اگر مجھ پر گولی چلاؤ گے تو یہ دونوں زندہ نہیں رہیں گے۔ پھر کتنی گولیاں چلیں گی اور کتنے مسافر مارے جائیں گے، اس کا حساب کر سکتے ہو۔ تمام مسافروں پر دہشت طاری ہو گئی تھی، عورتیں اور بچے رونے لگے تھے۔ اسی وقت پارس نے پیری ماؤنٹ کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے ایک ریوالور ایک افسر کی طرف اور دوسرا ریوالور دوسرے افسر کی طرف اچھالا تو ان دونوں نے انہیں کیچ کر لیا۔ پھر ایک افسر نے کہا، اب بتاؤ نشانے پر ہم ہیں یا تم ہو؟ پیری ماؤنٹ نے پریشان ہو کر ان دونوں کے ہاتھ میں وہ ریوالور دیکھے، پھر پلٹ کر گونگوں کی طرف دیکھے بغیر بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ہاتھ سے ریوالور نکل کر ان کے پاس کیسے چلے گئے؟ پھر پیری ماؤنٹ نے پارس کی مرضی کے مطابق کہا، ان سے ریوالور چھیننا ضروری نہیں ہے، پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جماؤ اور اسے پرواز کا روٹ بدلنے پر مجبور کرو۔ پیری ماؤنٹ اور وہ دونوں گونگے پوری تیاریوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے پائلٹ اور کو پائلٹ وغیرہ کی آوازیں بھی سنی ہوئی تھی۔ انہوں نے پائلٹ کے دماغ پر جا کر قبضہ جمانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ اس کے دماغ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ کو پائلٹ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، ان کا دماغ جیسے فولاد ہو گیا تھا، ان کی سوچ کی لہریں ان پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ ایک گونگے نے کاغذ پر کچھ لکھ کر اسے پیری ماؤنٹ کی طرف بڑھایا۔ پیری ماؤنٹ نے اسے پڑھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، ہم پائلٹ کے دماغ میں جا رہے ہیں لیکن ہماری سوچ کی لہریں اس کے دماغ پر اثر نہیں کر رہی۔ دور کھڑے ہوئے ایک افسر نے کہا، وہ پرچی ہمیں دکھاؤ، بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے پرچی لیتا، پیری ماؤنٹ نے اسے منہ میں ڈال لیا اور نکل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ 2 گونگے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی موجودگی کا علم انٹرپول والوں کو ہو، لیکن انٹرپول والے نادان نہیں تھے کہ اتنا سمجھ نہ سکتے کہ اس کے 2 راہب بھی اہمیت رکھتے ہیں اور اس کی خفیہ طور سے مدد کر رہے ہیں جس کا انہوں نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ ویسے اپنے غائب دماغ ہو کر پستول پیری ماؤنٹ کی طرف اچھالنے سے ایک شبہ تو ہوا تھا کہ ایسا ٹیلی پیتھی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک افسر نے دونوں سراغ رسانوں سے کہا، ان میں سے ایک گونگے کو ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈ کے کیبن میں لے جاؤ اور ان کی زبان کھلواؤ، یہ بناوٹی گونگے لگ رہے ہیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوسرا سراغ رساں ایک گونگے کو پکڑ کر جہاز کے پچھلے حصے میں ایک کیبن کے اندر لے گئے۔ دونوں سراغ رساں ایک گونگے کو پکڑ کر جہاز کے پچھلے حصے میں ایک کیبن کے اندر لے گئے۔ پارس اس میں سے ایک سراغ رساں کے دماغ میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنی بھی پٹائی کریں گے وہ گونگا بول نہیں سکے گا کیونکہ وہ تنویمی عمل کے زیر اثر تھا۔ اس سراغ رساں نے پارس کی مرضی کے مطابق ایک چھوٹا سا چاقو لے کر اس گونگے کے بازو کو چیر دیا۔ زخمی ہوتے ہی وہ کراہنے لگا۔ تنویمی عمل کا اثر زائل ہو گیا۔ پارس اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سراغ رسانوں کے سوالوں کے جواب میں باتیں بنا سکتا تھا، لیکن پارس کی مرضی کے مطابق کہنے لگا، میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں لیکن میرے باس نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا اور مجھے گونگا بنا دیا تھا۔ ابھی آپ نے مجھے زخمی کیا ہے تو اس عمل سے نجات پا گیا ہوں، اس لیے اب بول رہا ہوں۔ اور وہ دوسرا گونگا بھی کیا تنویمی عمل کے زیر اثر ہے؟ جی ہاں، جب تک اسے زخمی نہیں کیا جائے گا وہ بھی نہیں بول سکے گا۔ کاغذ کی پرچی میں کیا لکھا تھا؟ میں نے لکھا تھا، پائلٹ کے دماغ میں جگہ نہیں مل رہی ہے، جیسے پہلے سے کسی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا ہو۔ ہماری سوچ کی لہریں اثر نہیں کر رہی ہیں، لہٰذا اثر کرتی تو ہم اس جہاز کو کسی دوسرے ملک میں لے جاتے۔ بہرحال پائلٹ محفوظ ہے۔ ایک سراغ رساں نے دوسرے سے کہا، جاؤ تم دوسرے گونگے کو بھی لے آؤ، اسے بھی زخمی کر کے تنویمی عمل سے نجات دلا کر ان دونوں کو اپنے قابو میں رکھا جائے گا۔ پارس نے علی کو مخاطب کر کے وہاں کے مختصر حالات بتاتے ہوئے کہا، وہ دونوں گونگے اب بولنے لگے ہیں، لہٰذا اب یہ گیم تمہارا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیکی اولڈ کسی دوسری جگہ مصروف ہے، ورنہ پیری ماؤنٹ جیسے اہم مجرم کو وہ نظر انداز نہ کرتا اور صرف اپنے 2 گونگے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر بھروسہ نہ کرتا۔ تم فوراً وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ علی نے فوراً کمپیوٹر کے ذریعے FBI کے نئے یوگا جاننے والے اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا، پیرس سے اس وقت ایک طیارہ ہنگری جا رہا ہے۔ پہلے وہ سوئٹزرلینڈ اترے گا، پھر آسٹریلیا جائے گا، اس کے بعد ہنگری جائے گا۔ اس طیارے میں 2 گونگے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں جو بھی انٹرپول والوں کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو زخمی کیا ہے تو ان کے ذہن سے تنویمی عمل کا اثر ختم ہو گیا ہے، اب وہ بولنے لگے ہیں، لہٰذا آپ فوراً ایکشن لیں۔ جیسے ہی طیارہ سوئٹزرلینڈ اترے، آپ دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں۔ انٹرپول والے انہیں آپ کے حوالے ضرور کریں گے۔ کمپیوٹر کے ذریعے پوچھا گیا، تم کون ہو؟ اپنی شناخت کراؤ۔ میں آپ کے 6 ٹیلی پیتھی۔ طیارے کے اندر دوسرے گونگے کو زخمی کرتے ہی اس نے ہلکی سی چیخ ماری، پھر خیال خوانی کے ذریعے فوراً ہی جیکی اولڈ کے دماغ میں پہنچ کر بولا، باس خطرہ۔ جیکی اولڈ فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچا۔ پتہ چلا کہ وہ دونوں جو گونگے بنے ہوئے تھے وہ تنویمی عمل کے اثر سے نکل تو چکے ہیں لیکن اس کے تابع اور وفادار ہیں۔
इसी लिए उन्होंने इसे मदद के लिए आवाज दी थी। जैकी ओल्ड ने इसके दिमाग में रहकर फौरन ही वहाँ के मुख्तसर हालात पढ़े। फिर पैरी माउंट के दिमाग में आकर बोला, मैं जैकी ओल्ड हूँ, आ गया हूँ, फिक्र ना करो, तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। पारस ने पैरी माउंट के दिमाग में एक कहकहा लगाया, फिर कहा, मिस्टर जैकी ओल्ड, मुझे पहचानो, मैं आंद्रे बोल रहा हूँ। 6 टेलीपैथी जानने वालों को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आंद्रे का नाम तुम्हें तो याद जरूर होगा। अच्छा, तो तुम ये सब कर रहे हो, क्या किया जाए? तुम बहुत पुरस्कार बनना चाहते हो और मैं तुम्हें रुपोश रहकर पुरस्कार बनने नहीं दूंगा। तुम पैरी माउंट को झूठी तसलियां देने की बजाय खुद अपनी फिक्र करो। जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो तुम्हारे पास पहुँचने में देर नहीं लगेगी। जैकी ओल्ड ने कहा, मुझे पहली बार ख्यालखानी के जरिए बोलने पर मजबूर कर रहे हो, तो अब मैं बोल रहा हूँ। बोलने के बाद मैं अपना लबो लहजा तब्दील कर दूंगा ताकि दोबारा मेरे दिमाग में ना आ सको। इस वक्त तक अली इसके पास पहुंच गया था। अली ने कहा, इतनी बकवास करने से बेहतर है काम की बात करो। जैकी ओल्ड ने कहा, काम की बात यह है कि मैं पैरी माउंट को और अपने 2 टेलीपैथी जानने वालों को बखरियत ले जाना चाहता हूँ। अब ये फैसला तुम पर है और अमेरिकी या काबरीन पर कि इन तीनों को ले जाने दोगे या इस पूरे जहाज को तबाह कर दूं। सिर्फ एक पायलट के दिमाग पर कब्जा जमा लेने से तुम मैदान जीत न सकोगे। अली ने कहा, भाई वाह, इतनी जल्दी कितनी जबरदस्त चाल सोच ली। सुन रहे हो पैरी माउंट, हम तुम्हारे दिमाग में रहकर बातें कर रहे हैं। इस जहाज के तबाह होने का मतलब है कि तुम भी काम से गए। ये जहाज तबाह होगा तो हमारे बाप का क्या जाएगा? हम तो इसमें सफर नहीं कर रहे, मुसाफिर तो तुम हो। अब तुम ही जैकी ओल्ड से बातें करो। पैरी माउंट ने परेशान होकर पूछा, जैकी, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या इस जहाज के साथ मुझे भी मार डालोगे? क्या यही हमारी दोस्ती है? भाई तुम जरा सब्र करो, मुझे इनसे बातें करने दो। अली ने कहा, हाँ, ये बातें नहीं करेंगे बल्कि हमें धमकी देते रहेंगे या फिर तुम्हें तसलियां देते देते अचानक जहाज को इसलिए तबाह कर देंगे कि इनके 2 टेलीपैथी जानने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। वो इनके बहुत से राज उगल देंगे और जैकी ओल्ड ये कभी नहीं चाहेगा कि इसके राज दूसरों को मालूम हो। अब जरा अपने दोस्त जैकी ओल्ड से पूछो कि इसके अहम राज कीमती हैं या तुम्हारी जान कीमती है। इसकी नज़रों में किसकी कीमत ज्यादा है? जैकी ओल्ड ने झुंझलाकर कहा, आंद्रे, तुम मेरे दोस्त को भड़का रहे हो। मैं अपने दोस्त की जान हर हाल में बचाऊंगा। पैरी माउंट ने कहा, देखो जैकी, अगर तुम वाकई मेरी जान बचाना चाहते हो और ये समझते हो कि मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा तो स्विट्जरलैंड में इस जहाज को उतरने दो। मुझे और अपने दोनों टेलीपैथी जानने वालों को गिरफ्तार होने दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर फुलादी किले में भी बंद किया जाएगा तो मैं तुम्हारे दोनों साथियों को लेकर निकल पड़ूंगा। कोई भी मुझे इस जमीन पर कैदी बनाकर नहीं रख सकता। ये तुम एक अरसे से जानते हो और सारी दुनिया की खुफिया एजेंसियों वाले सुरागर साहब और दूसरे इंटेलिजेंस वाले सब ही मेरे बारे में ये सब बात अच्छी तरह जानते हैं। अली ने कहकहा लगाकर कहा, अब जानने से क्या होगा, वक्त गुजर चुका है। जरा जैकी ओल्ड से पूछो और अपनी जहानत से काम लेकर सोचो। इतनी देर से इन दोनों गूंगों के दिमागी दरवाजे खुले हुए हैं और मेरे जो 5 टेलीपैथी जानने वाले हैं, इनके दिमागों में घुसकर वो राज मालूम कर रहे हैं जिन्हें जैकी ओल्ड छुपाना चाहता है। लिहाजा जैकी ओल्ड को अब इन 2 टेलीपैथी जानने वालों की भी जरूरत नहीं रही। तो फिर तुम्हारी क्या अहमियत है, इसका अंदाजा तुम खुद करो। पैरी माउंट ने कहा, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी बचाना है। इस वक्त तुम दोनों में से जो मुझे बचाएगा तो मैं इसके बुरे वक्त में काम आऊंगा। अब ये बताओ, अगर जैकी ओल्ड इस जहाज को तबाह करना चाहे तो तुम कैसे बचाओगे? बचाने की तदबीर हम कर चुके हैं। जिन 2 टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों के दरवाजे खुले हुए थे, इन्हें बेहोश कर दिया गया है। अब हम तुम्हें भी बेहोश कर देंगे तो जैकी ओल्ड किसी के दिमाग में नहीं पहुंच सकेगा। वो इस तियारे के अंदर किसी भी मुसाफिर के दिमाग में नहीं पहुंच सकेगा। फिर इस जहाज को कैसे तबाह करेगा? सिर्फ हम तुम्हें बचा सकते हैं। पारस ने पोरस से कहा, तुम पायलट के दिमाग में बहुत मोहतात रहो। जैकी ओल्ड बाजी हारने वाला है, इसलिए झुंझलाकर पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। मैं को पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाने जा रहा हूँ। बाकी मामला से निपटने के लिए अली यहाँ पहुँचा हुआ है। जैकी ओल्ड को यकीन नहीं था कि दोनों टेलीपैथी जानने वालों को बेहोश कर दिया गया है। वो ख्यालखानी के जरिए इनके पास गया तो वाकई इनके दिमाग बिल्कुल बेहिस हो चुके थे। वहाँ इसकी सोच की लहरें काम नहीं आ सकती थी, ना ही वो बेहोश होने वालों के अंदर जलजला पैदा करके इन्हें खत्म कर सकता था। जब वो वहाँ से वापस पैरी माउंट के पास आया तो इसके दिमाग को एक झटका सा लगा। पैरी माउंट भी बेहोश हो गया था। वो जानता था कि पायलट के दिमाग पर पहले ही किसी ने कब्जा जमा रखा है। वो को पायलट के दिमाग में गया तो पता चला कि इसका दिमाग भी जैसे लॉक्ड है। इसकी सोच की लहरें इस पर असर नहीं कर रही थी। वो झुंझलाकर फैक्स के जरिए FBI के नए अफसर से बोला, इन 6 टेलीपैथी जानने वालों के लीडर आंद्रे ने मुझे चैलेंज किया है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैं कहता हूं कि इसे बाज रखा जाए और मेरे 3 साथी जो इस तैयारे से आ रहे हैं वो जहां भी जा रहे हैं इन्हें जाने दिया जाए, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा।
मैं पूरे जहाज को तबाह कर दूंगा। वो फैक्स करने के बाद इस आला अफसर के दिमाग में आ गया, जो हमेशा इसका फैक्स वसूल किया करता था और जवाब दिया करता था। अब वो अपने ओहदे पर नहीं था, इसकी जगह योगा जानने वाला नया अफसर आया हुआ था। इस अफसर ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब यहाँ का आला अफसर योगा का माहिर होगा, तुम में से कोई इसके दिमाग में नहीं जा सकेगा। तुमने फैक्स में जो कुछ लिखा है इसका जवाब मुझे अपने मौजूदा आला अफसर की तरफ से मिला है, और वो जवाब ये है कि अमेरिका तुम्हारा मुल्क है और जो 2 टेलीपैथी जानने वाले तैयारे में हैं इनका भी मुल्क है। हम इन्हें इस मुल्क में लाएंगे, तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए और ये कोई गलत बात नहीं है। तुम हमसे कोई गलत काम कराना चाहते हो और धौंस में लाना चाहते हो तो फिर तुम देख लो कि इस तैयारे में किस तरह एहतियाती तदबीर की गई हैं। तुम किसी एयर होस्टेस वगैरह के दिमाग में रहकर भी इस तैयारे को तबाह नहीं कर पाओगे। जैकी ओल्ड से एक गलती हो गई थी, इसे चाहिए था कि पेरी माउंट और अपने 2 मातहत टेलीपैथी जानने वालों के जरिए पहले दूसरों की आवाजें सुन लेता ताकि बाद में इनके दिमागों में पहुंच पाता। वो तो सिर्फ पायलट और को पायलट की आवाज जानता था और इनके दिमागों में पहुंचने में नाकाम हो रहा था। अब पूरे तैयारे के मुसाफिर भी ऐसे थे कि अगर वो आपस में बातें भी कर रहे थे तो इनके पास नहीं पहुंच सकता था, पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। इसके अपने तीनों साथी बेहोश पड़े हुए थे। अली ने इन 6 अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले मातहतों से कहा कि वो इन 2 टेलीपैथी जानने वाले मातहतों की तरफ पूरी तवज्जो रखें। जैसे ही वो होश में आने लगे, इनके दिमाग पर इस तरह कब्जा जमा लें कि जैकी ओल्ड इनके अंदर ना जा सके। फिर इन पर तनवीमी अमल करके इन दोनों के दिमागों को लॉक करके इन्हीं को अमेरिका वापस आने पर मजबूर कर दें। स्विट्जरलैंड के जिनीवा एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे ताकि जैकी ओल्ड अपने बाकी टेलीपैथी जानने वाले मातहतों के जरिए वहां दहशतगर्दी ना फैला सके। जब तैयारा वहां पहुंचा तो अमेरिकी CIA वालों ने तैयारे के पास आकर सबसे पहले पेरी माउंट और दोनों टेलीपैथी जानने वालों को अपने कब्जे में लिया। इन तीनों को स्ट्रेचर पर डालकर अपने साथ वहां से ले गए। ऐसे वक्त जैकी ओल्ड ने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। वो इतनी बड़ी बाजी हारने के बाद समझ गया था कि अगर खुद को या अपने दूसरे मातहतों को जिनीवा एयरपोर्ट पर तबाही फैलाने के लिए पहुंचाएगा तो वहां भी नुकसान उठाएगा। जिस हिकमत अमली से आंद्रे काम कर रहा था, इससे वो समझ गया था कि फिलहाल इस पर काबू पाना मुश्किल है। आंद्रे की हैसियत से अब अमरीकी अकाबरीन के दिलो दिमाग पर अली की दाग जम गई थी। इसने इनका एतमाद हासिल कर लिया था। वो समझने लगे थे कि आंद्रे के साथ जो बाकी टेलीपैथी जानने वाले यानी कुल मिलाकर जो 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं वो मुहिब्बे वतन हैं, और उन्होंने पहली बार जैकी ओल्ड को बहुत जबरदस्त चोट देकर इसके 2 टेलीपैथी जानने वाले छीन लिए हैं। अली ने कंप्यूटर के जरिए पूछा, ये जो 2 टेलीपैथी जानने वाले हैं इन्हें हम अपने साथ रखें या आपके पास भेज दें? जो फैसला आप करें वो हमें मंजूर होगा। आला अफसर की तरफ से जवाब मिला, तुमने वाकई वफादारी और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। तुम्हारे पास अब तक हमारे 5 टेलीपैथी जानने वाले महफूज हैं। इन दोनों को भी अपने पास रखो, तुम्हें इजाज़त दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इन पर तनवीमी अमल के जरिए जैकी ओल्ड के तिलिस्म का तोड़ करूंगा और इन्हें अपने मुल्क का वफादार बनाकर अपने साथ रखूंगा। इसने अपने 6 टेलीपैथी जानने वालों से कहा, तुम सब इन 2 बेहोश टेलीपैथी जानने वालों की तरफ खास तवज्जो दो। जैसे ही वो जरा जरा सा होश में आने लगे, इनके दिमागों पर फौरन कब्जा जमा लो ताकि जैकी ओल्ड इन्हें दोबारा हासिल न कर सके। जब कोई इनके दिमागों में नहीं आ सकेगा तो टेलीपैथी के जरिए इन्हें अपना वफादार बल्कि मामूल और ताबे बना लो। पारस और पोरस की हदायत पर 2 टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसां इस खतरनाक मुजरम पेरी माउंट के दिमाग पर छा गए थे ताकि जैकी ओल्ड इसके दिमाग में भी ना आ सके। जब वो जरा सा होश में आने लगा तो इनमें से एक ने पूरी तरह इसके दिमाग पर कब्जा जमाया और दूसरे ने इस पर तनवीमी अमल शुरू कर दिया। जब वो तैयारा जिनीवा एयरपोर्ट से रवाना हुआ तो जैकी ओल्ड अब इस तैयारे में दिलचस्पी नहीं ले रहा था क्योंकि इसके 3 अहम अफराद दुश्मनों के कब्जे में चले गए थे। अब इस तैयारे में कोई नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि इसके 2 दुश्मन इस तैयारे में चले आ रहे हैं। अब जैकी ओल्ड कहाँ है ये तो पोरस और पारस भी नहीं जानते थे, लेकिन एक अंदाजा था कि जब पेरी माउंट 2 गूंगे टेलीपैथी जानने वालों के साथ हंगरी जा रहा है तो शायद जैकी ओल्ड हंगरी में ही होगा, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से आगे हंगरी नहीं जा सकते थे। जनाब तबरेज़ी की हिदायत के मुताबिक इन्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही जाना था। वो दोनों इस मुल्क के दारुल हुकूमत वियना में पहुंच गए। तेजपाल ने कंप्यूटर के जरिए FBI के नए आला अफसर से रब्ता किया। इसकी तरफ से कहा गया था कि जैकी ओल्ड के 2 टेलीपैथी जानने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन्हें अमेरिका लाया जा रहा है, और इनके अलावा एक खतरनाक बदनाम ज़माना मुजरम पेरी माउंट भी है। जैकी ओल्ड कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहता था
और इसे शायद अपने पास हंगरी बुला रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक जैकी ओल्ड को हंगरी में होना चाहिए। अब तुम ये कोशिश करो कि किसी तरह हंगरी में इसका पता चलाओ, और इस बात का भी ख्याल रखो कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनके अमेरिका पहुंचने तक दुश्मन मुदाखलत न करे। अपने टेलीपैथी जानने वालों को ये समझा दो कि वो खामोशी से इनकी निगरानी करते रहें। यह हदायत सुनकर तेजपाल ने सोचा, इन 6 टेलीपैथी जानने वालों में से आंद्रे ने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे भी कुछ कर दिखाना है और जैकी ओल्ड को गिरफ्तार करने का एक रास्ता है। इसके चारों टेलीपैथी जानने वाले साथियों ने पूछा, वो रास्ता क्या है? वो ये कि तुम में से कोई 2 अफराद पेरी माउंट के दिमाग पर कब्जा जमा कर रखें। सुना है वो बेहोश है। जैसे ही वो होश में आए तो इसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया जाए, फिर इस पर तनवीमी अमल करके इसे अपना ताबे बना लिया जाए, फिर इसे फरार होने का मौका दिया जाए। मुझे यकीन है कि फरार होने के बाद वो सीधा जैकी ओल्ड की तरफ जाएगा। यूं हमें इसकी पनाहगाह का इल्म हो जाएगा। तेजपाल ने कंप्यूटर के जरिए कहा, जिन 3 लोगों को कैदी बनाकर लाया जा रहा है, हम इनके दिमागों में पहुंचना चाहते हैं। इन्हें एक टेप रिकॉर्डर के जरिए ऐसी 3 अफराद की आवाजें सुनाई गईं जो पेरी माउंट और दोनों टेलीपैथी जानने वालों को ला रहे थे। तेजपाल के चारों टेलीपैथी जानने वालों ने इन आवाजों को सुनकर अपनी याददाश्त में महफूज किया। फिर तेजपाल से कहा, अब हम इनके दिमागों के जरिए पेरी माउंट तक पहुंच सकते हैं। इन लोगों के पास पहुंचने पर पता चला कि अभी इन तीनों को एक अस्पताल में बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया गया है और इन्हें होश में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे वक्त वो दोनों पेरी माउंट के करीब बैठे हुए एक आला अफसर के दिमाग में थे। जब पेरी माउंट के जिस्म में जरा सी हरकत होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगा तो उन्होंने इस अफसर के जरिए इसे मुखातिब किया, हेलो पेरी, हेलो, तुम मुझे देखो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? इसने बड़ी नकाहत से पूछा, नहीं, तुम कौन हो? इसकी इतनी सी बात सुनते ही बेजून और रॉबर्ट इसके दिमाग में पहुंच गए। वहां पहुंचकर इसके ख्यालात पढ़ने की कोशिशें की तो पता चला तो इनसे पहले ही कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला पहुंचा हुआ है और इसने पूरी तरह इसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ है। रॉबर्ट ने वापस आकर तेजपाल से कहा, पेरी माउंट के दिमाग पर किसी टेलीपैथी जानने वाले ने पहले से कब्जा जमाया हुआ है। तेजपाल ने कहा, मुझे शुबा था जिन लोगों ने इन तीनों को गिरफ्तार करवाया है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनमें से जरूर कोई इनके दिमाग में रहेगा। बहरहाल तुम दोनों वहाँ मौजूद रहो और देखो कि वो कब्जा जमाने वाला इसके दिमाग के अंदर क्या करता है और क्या करना चाहता है। इंटरपोल और अमरीकी अकाबरीन इस खतरनाक मुजरिम को अमरीका लाकर गोली मार देना चाहते थे, लेकिन दानिशमंदी ये थी कि इसे फिलहाल हिरासत में रखा जाए और फिर इसे फरार होने का मौका दिया जाए ताकि वो जैकी ओल्ड की तरफ जाए। ये बात पोरस और पारस ने भी सोच रखी थी और पेरी माउंट के दिमाग में जो टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसां थे इन्हें भी ये बात समझा दी थी कि जैसे ही वो होश में आए तो इनमें से एक पेरी माउंट के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाए रखे ताकि कोई मुदाखलत ना करे और दूसरा इस पर तनवीमी अमल करके इसके जहन पर यह बात नक्श कर दे कि वो फरार होने के बाद जैकी ओल्ड के पास जाएगा और अगर इसका पता मालूम नहीं है तो कहीं ना कहीं से इसका पता मालूम करके इससे राब्ता करके मुलाकात करे। तेजपाल भी पारस और पोरस की तरह बेहद ज़हीन था। इसने भी यही सोचा था। जब इस खतरनाक मुजरम पेरी माउंट के दिमाग पर एक टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसां ने तनवीमी अमल शुरू किया तो तेजपाल के टेलीपैथी जानने वाले बेजून और रॉबर्ट खामोशी से सुनते रहे और इसलिए भी सुनते रहे कि वो जो कुछ चाहते थे इसी के मुताबिक पेरी माउंट के दिमाग पर अमल हो रहा था। इनमें से बेजून ने आकर तेजपाल से कहा, ये तो कमाल हो गया। हम जो बातें पेरी माउंट के दिमाग में नक्श करना चाहते थे वही बातें टेलीपैथी जानने वाला नामालूम शख्स इसके दिमाग में नक्श कर रहा है। वो भी इसे फरार कराना चाहता है और इसका ताक़ुब करते हुए जैकी ओल्ड तक पहुंचना चाहता है। तेजपाल ने कहा, फिर तो ये हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, बस तुम में से एक वहां रहे और दूसरा चला आए। रॉबर्ट वापस आ गया। तेजपाल ने अपने 3 टेलीपैथी जानने वालों को देखते हुए कहा, वो तैयारा हंगरी तक जाएगा। जिनीवा एयरपोर्ट पर कैदियों को उतार दिया गया है। अब वो तैयारा ऑस्ट्रिया पहुंच चुका होगा। रॉबर्ट, तुम वहां इमिग्रेशन काउंटर पर जाकर चेक करो कि पेरिस से कितने मुसाफिर इस तैयारे में सवार हुए हैं। यकीनन टेलीपैथी जानने वाले दूसरे लोग भी जैकी ओल्ड तक पहुंचने के लिए यही राय कायम कर रहे होंगे कि वो हंगरी में होगा या ऑस्ट्रिया में। लिहाजा तुम जोसेफ विस्की और माइक मोरो हंगरी के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचो और यही बातें मालूम करो। देखो कि किस पर शुबा होता है, वो एक है या एक से ज्यादा है, और इनकी बातों से, इनकी हरकतों से समझने की कोशिश करो कि वो लोग क्या चाहते हैं। क्या वाकई ये लोग वही हैं जिनकी हमें तलाश है? इन तीनों ने कहा, हम समझ गए कि आप क्या चाहते हैं, लिहाजा हम ख्याल खानी के जरिए जा रहे हैं।
وہ تینوں بھی چلے گئے۔ ان میں سے رابرٹ آسٹریا کے امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پارس اور پورس وہاں سے نکل کر کسٹم والوں سے اپنا سامان چیک کرانے کے بعد وہاں کے سب سے مشہور و معروف اور مہنگے ہوٹل اینا گرانڈ کی طرف جا رہے تھے۔ ادھر رابرٹ نے کاؤنٹر کیپر کے ماتحت کے ذریعے رجسٹر چیک کرایا۔ پتہ چلا کہ پیرس ایئرپورٹ سے 10 مسافر اس طیارے میں سوار ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 وہی تھے، ایک پیری ماؤنٹ اور 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، باقی 7 رہ گئے تھے۔ ان میں سے 5 مسافر ایسے تھے جو مستقل آسٹریا کے باشندے تھے اور انہوں نے اپنی مستقل رہائش کا پتہ لکھوایا تھا۔ باقی 2 جوان تھے جو تفریح اور سیاحت کی غرض سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے یہ لکھوایا تھا کہ وہ ویانا کے کسی اچھے ہوٹل میں قیام کریں گے اور قیام کرنے کے بعد وہاں کے متعلقہ شعبے کو اطلاع دیں گے کہ وہ کس ہوٹل میں ہے۔